Now moving forward, we are going to discuss about distributivity of multiplication over addition and subtraction. Okay, so जो multiplication है हमारा वो हम distribute कर सकते हैं addition and subtraction के ऊपर. हम a into b plus c को हम क्या लिख सकते हैं? Because multiplication is distributed, this should be equal to a into b plus a into c. Okay, and similarly subtraction के लिए हम क्या लिखेंगे? a into b minus a into c. तो हमने मल्टीप्लिकेशन को जो है, जो नंबर्स है उससे पहले हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन. यहाँ पे एडिशन था, इसके ऊपर एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन. Now let's consider some examples, उससे थोड़ा और क्लियर होगा. एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? I hope you get this. I'll just erase this. Okay. Now the first example is 7 by 5 into minus 3 by 12. This is in one bracket plus 7 by 5 into 5 by 12. Now इनको मैंने ऊपर सेम इक्वेशन के नंबर्स ऊपर नीचे जानबूझ के लिखे हैं so that you can see the common number in both of them. Seven by 5, it's common in both of them, right? तो अगर इस इक्वेशन को हम कंसीडर करें तो 7 by 5 हमारा क्या हो गया? A minus 3 by 12 B और 5 by 12 C. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 by 5 into minus of 3 by 12 plus 5 by 12. Make sense? हमने कुछ नहीं करा, जो भी कॉमन है, क्योंकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं. We can take common as well. So we have taken A as the common factor, 7 by 5 as a common factor, and then in the brackets or inside we have taken minus 3 by 12 to be as B and 5 by 12 equal to C. Now for the second example, it's in exactly the same pattern as the first one. इसमें what are the common numbers? We have 9 by 16, 9 by 16. ये दोनों different है. ये मैं पूरा solve नहीं कर रहा हूँ. This is not very difficult to solve, so I leave it to you guys to solve it. If you have any queries, please feel free to reach out to me in the comment section. I will help you out. But हम इसको करेंगे कैसे? We'll add these two first and then multiply the result of this in this bracket with this number. तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है ऑलरेडी दोनों में सेम है, कॉमन है 12. तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स के ऊपर जो ऑपरेशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं. तो माइनस 3 प्लस 5 2. तो यहां पे हमें मिल जाएगा 2 by 12. सो दिस वुड बी इक्वल टू 7 by 5 into नाउ 2 by 12 को अगर मैं लीस्ट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा? 1 by 6. दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो उसका रिजल्ट हो गया 7 by 30. नाउ सेकेंड वन के लिए वी विल फॉलो द सेम एक्सरसाइज. कॉमन हमने क्या लिया? 9 by 16, 4 by 12 minus 3 by 9. यहाँ पे एडिशन था, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है. दिस इज द ओनली डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है दैट इज ऑफ नेगेटिव, बट द प्रॉपर्टी एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी सेम. नाउ इधर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट neither of these two numbers are in their simplest form, so we can reduce them and make it simple. This would be 9 by 16 into 4 by 12 का कॉमन फैक्टर क्या है? 4. 4 को हमने दोनों से कट करा तो क्या आएगा? 4 1s are 4 and 4 3s are 12.
Similarly 3 1s are 3 and 3 3s are 9. So 1 by 3 minus 1 by 3 0 0 आ गया, तो 0 हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0. So moving forward, let's discuss couple of more examples from the NCERT. So the first one is write the additive inverse of the following. पहला नंबर क्या है -7 by 19 and second one is 21 by 112. Now what is additive inverse? हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, additive identity. वो क्या थी कि a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, negativity. Now negative of a number and additive inverse is same because a plus minus of a is equal to 0. अब क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर है वो 0 मिल रहा है, इसलिए हमने इसको इनवर्स बोला, हम ऐड कर रहे हैं इसलिए एडिटिव इनवर्स. तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स हमारा क्या हो गया, ये which is actually the negative of the number. Okay, so -7 by 19 का क्या होगा हमारा, minus of -7 by 19 which is equal to +7 by 19. We can check -7 by 19 +7 by 19 is equal to 0. डिनोमिनेटर में दोनों जगह 19 है, we can take that as common. Numerator is -7 plus 7 which is equal to 0. Similarly we check this for the second one, 21 by 112. इसका additive inverse क्या होगा, -21 by 112. We can verify the same pattern. 21 by 112 plus minus of 21 divided by 112. तो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन डिनोमिनेटर इज सेम एंड न्यूमरेटर one is plus, one is positive, other is negative. जो उनकी वैल्यू है वो सेम है, तो आंसर 0. Make sense? Okay. Now let's consider the second example. This is 2 by 5 into -3 by 7 minus 1 by 14 minus 3 by 7 into 3 by 5. थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, नो वरीज. बट जब हमने पहली बार इस इक्वेशन को देखा, हमने सबसे पहले क्या नोटिस करा कि -3 by 7 दो बार आ रहा है, सो वी कैन टेक दिस कॉमन समवेयर. अनदर थिंग आई नोटेड इज कि इन्होंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, सो आई कैन डू दिस. Okay, so this term -1 by 14 minus of minus this term. Simplicity के लिए हम क्या करेंगे अभी, let's assume this is A, this is B, this is C. 3 by 7 को हमने क्या लिया है B and 3 by 5 A B C. Let's take it to be D. अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड डी. मैं नंबर्स को भी देख ही नहीं रहा ना, कंसिडर कर रहा. सो इसको मैंने ए बी लिखा है, कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लीकेशन. ए बी माइनस सी माइनस BD. ओके, अब हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था, यस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी वी कैन राइट दिस टू बी AB minus BD
minus C. Okay, let me rub this. तो मेरे पास क्या आया, AB minus BC, oh sorry, this is BD minus C. तो हम थोड़ी देर पहले क्या चेक कर रहे था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, सो ओके, जस्ट वेट अ मिनट. इधर मैंने थोड़ी सी गलती करी है b के सब्स्टिट्यूशन में. इधर जो b है वो है -3/7, बट इधर जो मैंने वो b है वो नेगेटिव साइन एनकाउंटर नहीं करा मैंने. सो दैट्स अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट. सो हम इसको अभी ठीक कर लेते हैं. सो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. ओके, सो -1/14 प्लस माइनस ऑफ 3/7 इंटू 3/5. तो इससे चेंज क्या होगा हमारा, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी. तो यहां पे बस प्लस आ जाएगा. तो हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं ओवर एडिशन. सो दिस वुड बी a प्लस डी माइनस ऑफ सी. तो b है हमारा -3/7 जो हमने कॉमन लिया है, इंटू a है हमारा 2/5 और d है हमारा 3/5 माइनस 1/14 c -3/7, 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 1. तो ये हमारा इसी फॉर्म में रहेगा इंटू 1 -1/14 विच इज इक्वल टू 7 and 14 का एलसीएम 14 और 7 इंटू 2. सो हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -1/14. इधर मैंने बस एक स्टेप पूरा एलैबोरेट नहीं लिखा है. सो -3/7 इंटू 1 -3/7 आ गया हमारा और इसका हमने एलसीएम 14, 3 के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करा तो -3 से 2 मल्टीप्लाई कर दो -6 which is equal to -7/14 which is equal to -1/2. Okay, if you like my videos and if you like the way of teaching, please feel free to subscribe to our channel and share, comment, like our videos. So like us on, follow us on Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, and please do leave your valuable feedback in the comment section. So see you guys next time. Thank you.